Assalamualaikum dear students. I am your instructor in the class of Microprocessing Assembly Language. My name is Mubashra Manzoor and I am a faculty member at University of South Asia. Today's agenda, let's discuss about it. We are going to discuss, since we already discussed an introductory level concept of interrupts already, and now we know that what are hardware interrupts and what are software interrupts. We need to specifically understand the functionalities of an interrupt which is called interrupt 21H or INT21, right? So we have to discuss the functionalities of this particular interrupt in the 8086 architecture, and there are three main functions of this. Uh, it is used to take input. It is used to display the messages, the output, or anything that you want to display, and to terminate the program. If you remember from last discussion or the last emulator programming that we discussed, we actually use this whole thing called termination the program using INT21. That's why I actually, before I put up a video related to software interrupts and details, what I am going to do is I am going to explain the functionality of INT21H, because it is really important while you are doing programming or while you are simulating. This is going to bug you if you don't understand its functions, and if you don't understand how does it work, how to use it, right? So that is why this whole video is on INT21 functionality. So let's move on to my board. And yes, so when we discuss that software interrupts, there are 256 interrupts in 886, and again I would say these interrupts or the calls change with the architecture. It is not necessarily the same number in any other architecture, as we already discussed MIPS architecture, and I have given you assignment of comparing different architectures. So it's not necessary that if 886 has 256 software interrupts, it any other architecture has the same one. So how do we represent it? We represent int n, int this number, this n is represented over here. So this n is basically, this n represents the number, right? So when I say this particular number, that means I will write the number over here. That is why I wrote int21h over here, because we are going to discuss integer int interrupt 21h. रेंज क्या होती है इंटरप्ट्स की? इंटरप्ट रेंज फ्रॉम INT00 टू INT-FF. हमें ऑलरेडी पता है कन्वर्जन कैसे करते हैं फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. सो इफ़ वी हैव 00 टू F 256 इंटरप्ट्स, तो उसका मतलब ये है कि अगर हम उसे हेक्साडेसिमल वैल्यू में, एंड वी नो दैट इन असेंबली लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस आर इन हेक्साडेसिमल्स. So what we, and this h is because of hexadecimal, that's why it is written over here. So 00 से h ff तक ये values जो हैं वो range करती हैं, and out of this range is 21h, int 21h. So let's start with the first functionality, which is to input a character, or I said that it is used to take the input, user input. अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि whenever we deal with the hardware, the closer we get to the hardware, the difficult programming gets, and you will get this idea from this very topic, क्योंकि it gives you more flexibility to manipulate the hardware, or to save your resources, to save the memory, and to manage everything on the hardware level. But it comes at the cost of difficulty, especially in terms of programming. You have to be very careful while you are programming. अभी हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें difficult आ सकती हैं. जब हम कहते हैं कि इट इज़ व्हेन वी हैव टू टेक द इनपुट इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हमने किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट लेनी है,
तो अगर हम C++ यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी इन का एक फंक्शन यूज़ कर देंगे जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, एंड इट विल सिंपली गिव अस द हेल्प अस आउट इन टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। और वो जो यूज़र इनपुट है वो भी दोनों तरह की हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और वो इंटीजर टाइप या न्यूमेरिक टाइप भी हो सकती है। तो देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन ओवर देयर। और होता क्या है कि उसमें कोई ऐसा फस नहीं है कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट के लिए डिफरेंट तरह का फंक्शन यूज़ करना, ऐसा भी कुछ नहीं है वहाँ। सिमिलरली अगर हम पाइथन की बात करें तो हम सिंपल एक इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं और किसी भी तरह की इनपुट जो है वो हम यूज़र से ले लेते हैं। लेकिन when it comes to a lower level language, when it comes to assembly, you have to be very specific that what do you want to do, and you might have to write multiple lines of code for a single task. So यहाँ पे हम देखते हैं कि INT21 किस तरह से यूज़ हो रहा होता है। पहला जो काम है INT21 का वो है कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं ये वीडियो इस टाइम पे क्यों अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट टाइम जो हमने एमुलेटर पे डिस्कस किया था या एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम, दैट वाज हाउ टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर्स जो कि डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें यूज़र इनपुट कैसे लेनी है। तो दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग INT21 पहले, क्योंकि इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से INT21H को यूज़ करना है, वी डोंट नो हाउ टू प्रोग्राम और हाउ टू यूज़ इट इन अ प्रोग्राम। तो जब हम कहते हैं कि टू इनपुट अ कैरेक्टर, इसका मतलब ये हुआ, कैरेक्टर का क्या मतलब है? कैरेक्टर का मतलब है एनीथिंग दैट आई actually press on the any single key, any single digit or a letter that you get from the keyboard is a character. For example, 2 or 4 or G or M or L, anything that I press, or any even a special character, question mark, anything that is a character, right? It is usually of 8 bytes. So when I say that I have to take a character of an input, I have to use a certain I have to use INT21 in a certain way. ठीक है, हम देखेंगे ये पैटर्न चलेगा INT21 को यूज करने का, यानी आप कुछ वैल्यू जो है AH में मूव करवाएंगे या AH में कोई वैल्यू पुट करेंगे कि वो आपको जो है INT21 का वो वाला फंक्शन यूज करने देगा। जैसे हम सिस्टम कॉल्स यूज करते थे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे हमने मैप्स के केस में सिस्टम कॉल्स यूज की हैं, हमने उसका एक नंबर दे दिया कि इफ आई एम पुटिंग 10 इट मीन्स समथिंग एल्स, इफ आई एम पुटिंग 1 इट मीन्स समथिंग एल्स। सो सिमिलरली हियर अगर हम INT21H को यूज कर रहे हैं तो ये नंबर कि आप AH में क्या मूव करवा रहे हैं, एंड इट हैज टू बी AH, एक्यूमुलेटर का हायर बाइट। इसके अलावा कोई रजिस्टर नहीं हो सकता जिसमें आपने ये वैल्यू मूव करवानी है, जिस जो आइडेंटिफाई करेगी कि INT21H किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, if I have to take the input in terms of character, what I have to put here is 0, 1 each. The number that I will give over here is 0, 1 each. Whenever I have to take the input from the user, which is character in its type, I have to choose 0, 1. I have to move it into AH, and then I have to call INT21H, and it will help me out in taking input from the user, which is character in nature. अब जब आपको याद होगा जब आप C++ में वो करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप कहते हैं एंटर अ नंबर, आप यहाँ पे कह देते हैं कोई एंटर नंबर, उसके आगे आप कॉलन लगा देते हैं, आप कहते हैं इसके आगे क्या होता है, कर्सर ब्लिंक होता रहता है, कर्सर कीप्स ऑन ब्लिंकिंग अंटिल यू एंटर समथिंग एज अ यूजर, यू एंटर अ नंबर और अ डिजिट और एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 एंटर करना है, ठीक है, तो वो मेरा जो है वो 5 कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा। नॉर्मली हायर लेवल प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हैं कि उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे होते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपका असेंबली लैंग्वेज जो है, जब INT21 से आपने कोई भी यहाँ पे जब उसने डिस्प्ले किया, आपने यहाँ पे
प्रिंट किया, आपने यहाँ पे एंटर किया नंबर या डिजिट या कैरेक्टर, जब आपने ये कैरेक्टर एंटर किया तो ये कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट कहाँ जाके सेव होगा, दैट विल बी सेव्ड इनटू AL रजिस्टर, नथिंग एल्स बट AL, ठीक है. सो दैट इज हाउ if you keep the track of the topics, if you keep aligning all the topics together, आपको याद होगा हमने कहा था accumulator register is used as general purpose registers and it is used for a lot of जनरल पर्पस फिनोमिनास, राइट. सो यहाँ पे भी देखें कि हम बहुत सारी ऐसे, हमने इंस्ट्रक्शंस भी बहुत सारी ऐसी पढ़ी हैं जिसके अंदर AL स्पेसिफिकली यूज हो रहा है या AH स्पेसिफिकली यूज हो रहा है या AX का यूज हो रहा है. सो दैट इज यूज्ड एज अ जनरल पर्पस, और अरिथमेटिक्स में यूज हो रहा है, लॉजिक्स में यूज हो रहा है. तो ये सारा का सारा ये चीज़ भी इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है इससे क्लियर हो जाता है. So when user entered something which is character in nature, it will go to AL. Why? Because AL is an 8-bit register and मैंने आपको कहा character is usually 1 byte, right? तो 8-bit का character वो क्यों choose किया हमने रजिस्टर, बल्कि नॉट हमने नहीं किया, मैन्युफैक्चरर ने आपको बता दिया कि अगर 8086 आप ले रहे हैं इंटेल का आर्किटेक्चर, तो उसमें जब 5 आप एंटर करेंगे या कोई भी कैरेक्टर एंटर करेंगे तो वो हमेशा INT21 के थ्रू ही आप इनपुट ले सकते हैं, और वो कहाँ जाके बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हो जाएगा, AL में. अगेन 8-बिट का साइज है रजिस्टर का, और 8-बिट का ही साइज है जो आप इनपुट ले रहे हैं. कैरेक्टर इज ऑलरेडी बाइट साइज, राइट. सो दिस इज वन वे आप किस तरह से इनपुट ले सकते हैं. अब इस जब आप हायर लेवल लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, सी इन करवाया मैंने, ठीक है, मैंने कहा सी इन फ्रॉम द यूजर, और उसी के फौरन बाद मैंने उसी को अगर डिस्प्ले करवाना है तो मैंने उसी को सिंपल सी आउट करवा दिया. तो यहाँ पे अभी अगर ये 2 लाइन्स हमने इंस्ट्रक्शंस या कोड लिखा है तो दैट इज ओनली टू टेक द इनपुट. दिस इज नॉट हैंडलिंग कि आपने डिस्प्ले कैसे करवाना है, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनैलिटी विच इज कॉल्ड, दिस वाज एन ईजियर वन, कि अगर आपने कैरेक्टर इनपुट लेनी है तो आप क्या करेंगे, जो यूज करेंगे INT21 को बाय पासिंग द आर्ग्यूमेंट, पासिंग द पैरामीटर. आपको याद होगा ना, आप कहते हैं फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, पासिंग द पैरामीटर. तो यहाँ पे आप बेसिकली यही करें, ये जो नंबर आप पास करेंगे और पासिंग द पैरामीटर, एंड दैट पर्टिकुलर पैरामीटर इज फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. दे आर 5 टास्क इन टोटल that INT25 helps you out in, right? So passing the parameter is something which we have discussed over here, right? That this is passing the parameter. You pass the parameter over here, and different numbers are for different tasks. 0 1 is always for taking the input as a character, right? अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इसका जो वो है, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है दैट इज टू टेक द इनपुट ऑफ स्ट्रिंग. अब आपका डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप का तो नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का तो नहीं हो सकता. Even before coming to this, let me explain one more thing. What if I say I have a number 25? Is this a character or is this a string? Again, this is not single digit, but this is a character. Why? Because you can write this in nibble 0101, and you can write this into a nibble 0010. So 25 itself is a character that you are taking as an input. It will be an 8-bit number, right? In binary. So it is not necessarily only a single character when it comes to numbers. It can be 2 digits as well, right? But obviously 3 and 4 cannot be character because that exceeds the limit of the size of the data. Okay, so when we call, when we have to input a string, what are we going to pass as a parameter? आपका parameter passing क्या होगा? Parameter passing will be that you are passing 0A. These numbers are fixed
बाय द प्रोग्रामर। जैसे आप ये नहीं सीखते कि आपने सी इन ही क्यों यूज किया है फंक्शन फॉर सर्टन इनपुट, आपने सी आउट ही क्यों यूज किया है एज अ कीवर्ड, वो दैट इज नॉट योर कंसर्न, दैट इज समथिंग दैट द पर्सन हु एक्चुअली डेवलप द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज ऑलरेडी fixed. So similarly, if you are passing the character, passing the parameter which is 0a, that means you are asking your program to take the input from the user which is string in nature. अब string क्या चीज होती है? String is basically the array of characters, or you may say it is a combination of characters. तो अब जब मैंने अरे की बात कर लिया तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप अरे को कैसे डिक्लेयर कराते हैं असेंबली में। जब मैंने आपको वेरिएबल्स याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स में तो आप क्या करते हैं, सिंपल यू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग को कोई नाम दे सकते हैं, बट एवर द नेम यू एक्चुअली गिव वही नेम यहाँ पे आएगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ही यूज किया है। देन यू गिव द डेटा टाइप, वेरिएबल में भी ऐसे ही होता था, आप डेटा टाइप देते थे। यहाँ पे भी डीबी का मतलब ये है कि each character will be of this data type. So you are asking to reserve a memory of a certain size for your string which is combination of characters. Now I have written here 09H. What does that mean? It means that the size of the string is 9. It can take 9 characters, 1, 2, 3, 4, 5, and 9. So this is the whole point of it, right? So each you have defined that each location of the string or each location of the array actually is db type, defined byte type, which means each location is 1 byte, and how many bytes can it take? 9, 09 जो है वो उसका size determine कर रहा है string का। देन आई सेट डुप्लीकेट एक्स क्वेश्चन मार्क्स। आपको पता है हम क्वेश्चन मार्क्स उसमें भी तब यूज कर सकते थे करते थे जब हमने कोई डेटा डिफाइन नहीं किया, हमने कोई डेटा नहीं दिया, इट इट विल गिव यू अ डिफॉल्ट वैल्यू वट एवर इज इन इट। तो आप उसमें कोई डेटा नहीं प्लेस कर रहे, अगर आप वैल्यूज प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू अप्लाई द लूप इन केस ऑफ टेकिंग दिस द इनपुट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या क्या कह देते हैं, डुप्लीकेट, DUP इज डुप्लीकेट, क्वेश्चन मार्क्स फॉर ऑल ऑफ द लोकेशंस, दैट व्हाटएवर इज garbage value or whatever is by default placed in this one, लेकिन this is reserved for the string that is defined as a by me, right? मैं यहाँ पे string का नाम कोई भी दे सकती थी, I gave it a name string a। ठीक है, so that's how you declare an array or you define an array in the assembly language, 8086 assembly। अब आपने देखा होगा कि जब हमने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने की बारी आई है तो एक और इंस्ट्रक्शन इसमें बढ़ गई है। यानी कि पहले तो ये था कि हमने उसके अंदर जो है पैरामीटर पास किया और उसके बाद हमने int21h को कॉल कर लिया एज अ फंक्शन। लेकिन अब क्या होगा, अच्छा इसको मैं फंक्शन क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगेन INT जब भी इंटरप्ट अकर होता है तो उसके अगेंस्ट एक सर्विस सब रूटीन कॉल होती है। सब रूटीन इज अ फंक्शन दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, राइट? सो बेस्ड ऑन कि उसने किस तरह से वो एग्जीक्यूट होना है या उसके लिए कौन सी सब रूटीन कॉल होनी है, वो ये पैरामीटर डिटरमिन करेगा। अब ये एक इंस्ट्रक्शन मैंने एडिशनल इसमें लिखी है, एडिशनल नहीं मतलब दिस विल बी एडिशनल इन केस ऑफ स्ट्रिंग इनपुट। वो क्या है, ये कह रही है आप इसको कहते हैं LEA इंस्ट्रक्शन। LEA इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट था उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत दफ़ा आप देखेंगे ये रिपीट होगी। तो इसको आप क्या कहते हैं, ये LEA इज लोड अफेक्टिव एड्रेस, you call it load effective address, that is load
एड्रेस इज अनदर नेम ऑफ ऑफसेट एड्रेस. बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनिशियलाइज कर रहे हैं जो भी वैल्यू थी, जो भी स्टार्टिंग एड्रेस था अरे का, वो आप इस अरे का नाम स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने रखा था, इसी में इसी का स्टार्टिंग एड्रेस जो है या इसका ऑफसेट एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस इज अनदर नेम फॉर ऑफसेट एड्रेस, इनटू dx. यानी dx को अगर आप C++ की टर्म में कहें तो यू आर यूजिंग dx एज अ पॉइंटर. dx is now containing the address and pointing to the start of that array. So it is used as a pointer over here. ठीक है, तो वो एज अ पॉइंटर यूज हो रहा है और वो क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है टू द स्टार्टिंग ऑफ दैट अरे. इसमें dx में आप स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है वो स्टोर नहीं करवा रहे, बल्कि आप क्या कह रहे हैं, लोड इफेक्टिव एड्रेस इनटू dx, which address will be stored, the starting address of this array or the offset address. We already know that if we are within ज़ाहिर है ये जो डेटा स्टोर होगा, ये डेटा सेगमेंट की किसी ना किसी ऑफसेट एड्रेस पे स्टोर हो रहा होगा, तो क्या होगा, वो उस ऑफसेट एड्रेस या उस स्टार्टिंग ऑफसेट एड्रेस या स्टार्टिंग इफेक्टिव एड्रेस को कहाँ स्टोर कर देगा, dx में. सो नाउ dx इज बिहेविंग एज अ pointer in order to point to the location, starting location of that string या उस वो array को. ठीक है, because character string is array of characters, right? So this was the second way we can use int21h. Third thing that third functionality that we can perform with int21 is to display the character. मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 बेसिक फंक्शनैलिटीज बताई थी. मैंने कहा था either we can take the user input, जो कि दो अलग अलग वे में हमने डिस्कस कर ली. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डिस्प्लेइंग समथिंग. सो डिस्प्ले में भी ऐसे ही होगा कि डिस्प्ले में कैरेक्टर को डिस्प्ले करने का एक मेथड अलग होगा या उसका अलग पैरामीटर होगा, और सिमिलरली अगर आपने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है तो उसका पैरामीटर अलग होगा. अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. मैं आपको साथ साथ बताऊंगी जो भी मैं पहले बात करी थी कि जितना आप हार्डवेयर के क्लोजर जाते रहते हैं उतनी कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम कौन सा पैरामीटर यहाँ पास करेंगे जो कि डिटरमिन करेगा कि ये हम कैरेक्टर डिस्प्ले करवा रहे हैं. इफ आई हैव टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, what I have to do is I have to pass 02 as parameter into AH, and then what I'll do is I'll just call int21h. अब आप देख रहे होंगे उसके दरमियान में भी मैंने एक लाइन लिखी है जैसे अभी पहले हुआ था कि move dl में कैरेक्टर. अब ये हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि जो कैरेक्टर हमने डिस्प्ले करना है ऑब्वियसली हमने वो भी तो कहीं पर स्टोर करके ही उसको डिस्प्ले करेंगे ना. तो वेयर आर यू गोइंग टू स्टोर इट, इनटू DL रजिस्टर. DL को आप यूज करते हैं फॉर पासिंग द कैरेक्टर वैल्यू. फॉर एग्जांपल आपने ये करवाना है कि एक क्वेश्चन मार्क आपने प्रिंट करवाना है ऑन द स्क्रीन. सो व्हाट द क्वेश्चन मार्क विल बी गिवन हियर. अब यहाँ पे एक ये ट्विस्ट क्या है कि योर हार्डवेयर डज नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन मार्क. All it understands is the ASCII values of the characters. It only understands ASCIIs. It does not understand what have you written as a question mark or as a, and it does not convert internally to the other ASCII values. If you give me a chance, what I can do is you don't need to remember all the ASCII numbers, but for a little bit of your knowledge, what I'm going to do here is that if you have 0 to 9 character values on your keyboard, the ASCIIs actually start from 31H. I'm giving you the hexadecimal value, not the decimal value. You already know that. So 31 to 30 to 39 values are the ASCII values of. You already know that ASCII coding is the that's why आप लोगों को याद होगा कि जब भी मैं अरिथमेटिक्स करवाती हूँ, जब भी मैं बोर्ड पे सारी मैथमेटिक्स करवाती हूँ स्टार्ट में, तो all the students are more like
why are we doing this, and what is the use in the longer run for doing the mathematics and binaries all in all. Again, we do it in DLD as well, and then we have to do it here as well. Now you will know why do you need that. Because if you don't know the ASCII value for this, and you don't know that how to do you convert the ASCII value, ASCII coding system actually is a 7-bit coding. But obviously you can add a 0 and convert it into a 8-bit. So if you write the code for that hexadecimal code, that gives you a 30H in hexadecimal value, and up to 30 to 39 9 का जो ASCII character ASCII code है, hexadecimal value is 39. Similarly, अगर आप hexadecimal को ही treat कर रहे हैं, तो we don't only have digits, we have characters as well. तो कैरेक्टर्स का जो है वो आपके पास जो कैरेक्टर्स यूज हो रहे होते हैं मोर फ्रीक्वेंटली इन हेक्साडेसिमल आर A to F. तो उसका जो ASCII कोड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 41H से. कुछ लोग शायद यहाँ पे कहेंगे कि उसका तो ASCII कोड 65 होता है, दैट इज इन द डेसिमल, राइट. डेसिमल वैल्यू ऑफ द ASCII कोड इन ऑफ A इज 65, और जो हेक्साडेसिमल में उसी वैल्यू को कन्वर्ट करें तो दैट बिकम्स 41H, और ये जाती है 46H तक, अप टू 46H. अब ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये इस तरह का क्वेश्चंस, कन्वर्टिंग का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद मिड टर्म में भी दिया था कि आप मुझे कन्वर्ट करके बताएं कि इफ सर्टेन नंबर हैज दिस, देयर इज अ सर्टेन डिजिट और अ नंबर इन कैरेक्टर, तो उसका जो है हेक्साडेसिमल ASCII वैल्यू क्या होगी, कन्वर्ट करके बताएं. तो इवन इफ यू नो दैट दिस वैल्यू इन डेसिमल, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल और इवन बाइनरी. सो वो चीज़ें हमें पता हैं. अगर आप एमुलेटर में देखना चाहें, मैं सिर्फ यही बताने लगी थी कि अगर आप एमुलेटर ओपन करें तो वहाँ पे भी इट एक्चुअली गिव्स यू द ASCII वैल्यूज़, उसका टेबल एज वेल, क्योंकि आई नो कि वो उसको पूरा का पूरा याद करना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क. सो what we can do is this, के हम यहाँ से देख सकते हैं A की जो ASCII वैल्यू यहाँ पे उन्होंने बेसिकली जो दिया हुआ है वो है डेसिमल नंबर्स. सो A की ASCII वैल्यू इज A की जो ASCII कोड है दैट इज 65 का बाइनरी, राइट. लेकिन अगर उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो दैट बिकम्स 41H. सिमिलरली अप टू Z 090 बन जाता है, जो कि जो उसमें है आगे वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास. ऐड करके देख लें, 26 ऐड कर लें 41H में. उसके बाद आपके पास है 0 to 9 जो लेटर्स हैं, सॉरी कैरेक्टर वो हैं डिजिट्स हैं 0 to 9. उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 48 से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ डेसिमल वैल्यू, और अगर आप इसे कन्वर्ट करें टू हेक्साडेसिमल दैट विल बी 30H एंड अप टू 9 जो कि बन जाएगा 46H, सॉरी 39H. ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं आपकी ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं. दैट्स हाउ यू विल एक्चुअली गिव द वैल्यूज, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स और द व्हाटएवर यू आर पासिंग ओवर हियर. व्हाट इट विल अंडरस्टैंड कि आप किस चीज का ASCII जो है यहाँ पे पुट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले A. I cannot display simply A, or I cannot give A into DL, क्योंकि उसको नहीं पता कि A क्या है. It cannot even convert A into something. So what it can convert is the ASCII value. It can take the ASCII value which is 41H. So if I have to display A, what I have to give over here is the ASCII value of A. So that's the little twist with this whole assembly language thing. So what happens with this? अच्छा, अगर एक कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कैरेक्टर कैन ऑल्सो मीन कि इट इज अ 2-digit number as well. For example, 25 is a character, right? So when I say that this is an 8-bit character, 8-bit number, right? So उसमें क्या है कि 2 के लिए there is a separate ASCII and 5 के लिए there is a separate ASCII. अब please don't confuse it कि H के लिए एक separate ASCII होगा, क्योंकि H only represent hexadecimal value, that it is only written because it is the value is in hexadecimal. So please don't confuse it, क्योंकि ये आप लोगों ने papers में भी बहुत गलतियाँ की हैं.
सो 2 के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो 2 के लिए जो हमारे पास आएगा हेक्साडेसिमल आस्की कोड वो 32 आएगा, और जो उसके लिए आएगा 5 के लिए वो आएगा 35. That means if I have to display a number and I give the character over here, what I have to give is 32 and 35. Or even if I am taking the input and displaying it, for example, I took the input as 25H and now I want to display it using this. Just try it on emulator. Try it on emulator and tell me what it gives you as an output. It will give you 32 and 35, the whole number. Now you don't understand what is 32 and 35. All you have given is 25H. So you actually need to convert that into actual number or the ASCII value, or what do you want to actually display. How would you do that? First of all, there is a whole, we already know that this is the DL register. If this is the DL register, from here to 4 and 4, 8, if you consider this as a DL register, it has already 8 slots, right? Now each slot has to contain some number, right? It has to contain the binary of certain number. Now what will you do actually? You given the ASCII of 2, which is 32, right? Which means if you pass 32 over here, you will have to uh, move it to the higher nibble. This is the lower nibble. This portion is the lower nibble. This is the higher nibble. In actual, 2 का binary should exist over here. 5 का binary should exist over here. 4 बिट का बाइनरी दोनों का होना चाहिए. तो जब आपको चाहिए, आपके पास जो नंबर आया वो 32 आया इंटरनली, what you will do is you will subtract 30 out of it. Every time you are passing a number, you subtract 30 out of it, you will get 2. But this 2 cannot be stored over here. अगर मैं इसे स्टार्ट करूं तो वो लोअर से स्टार्ट होता है ना स्टोर होना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मेरे पास 0 0 1 0. So what you will do with this, आपको तो ये हायर निबल में चाहिए. अगर इंस्ट्रक्शन सेट आपको याद हो तो what I'll do is I can rotate it 4 times. तो रोटेट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा कि पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आया है, ऑब्वियसली यहाँ पे देयर विल बी कंडीशंस ओनली टू टेक डिस्प्ले द नंबर और ओनली टू टेक द इनपुट एंड डिस्प्ले इट, वी विल हैव अ लेंथी कोड, राइट? सो व्हाट विल हैपन इज कि पहले तो ये कि आपने 25 डिस्प्ले कराना था, उसका जो ईच डिजिट हैज इट्स ओन आस्की वैल्यू, आस्की कोड. अब उन आस्की कोड्स में से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अगर तो वैल्यू 30 से 39 तक है ना, तब तो उसमें से 30 माइनस करवाएं, क्योंकि 30 माइनस करेंगे तो यू विल एक्चुअली गेट द वैल्यू, बिकॉज जैसे 32 है, इफ यू माइनस 30 आउट ऑफ इट तो यू गेट द 2. If you minus 30 out of this, you get 5, which is the actual number. But over here, if you see, you have to, this is 10 and this is 41, which means that you have to subtract 37 out of it. So क्या होगा, आपको यहाँ कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भी तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज दे रहे हैं तो वो यूजर जो है कोई भी कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लेटर प्रिंट कर दे, क्योंकि द हेक्साडेसिमल वैल्यूज ओनली एग्जिस्ट टिल f, राइट? तो अगर आपने उसको एक रेंज दी है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर वैल्यूज 30 से 39 तक हैं तो उसके अंदर से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें 30, और 30 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का बाइनरी. बट 2 का बाइनरी इज इन लोअर बाइट व्हेन यू स्टोर इट. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप उसे रोटेट राइट कर देंगे. कितने टाइम्स, 4 टाइम्स. अगर मैं इसे 4 टाइम्स रोटेट करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहां आ जाएगा एंड आई विल गेट 0 0 0 ओवर हियर.
नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि इसमें से इसकी जो वैल्यू है, इसके जो आस्की है उसमें से 30 माइनस करें और उसकी जो वैल्यू आई है उसको स्टोर करवाना है आपने कहीं पे. अब इट इज नॉट दैट इजी अगेन. What you have is over here is 20 ka binary right now. When you rotate it, you get this. All zeros, 20. So what you have to do is you have to get this 20 and you have to get this number after subtracting 30 from it, and you have to add. You will get the number 5. 0 5 का binary आ जाएगा आपके पास. You will add these two numbers and then you can get this 25 displayed over here. You will add 5 ka binary, whatever comes from here after subtracting 30, you will add it into this number and what you will get is 1 and 1 over here, which is 25 ka binary. So just to display a number, you have to go through all this hectic process. But why does it help? Because it gives you access till the hardware, the memory. You can manage everything to the core, right? So that is why assembly language is important, but it comes at the cost of complexity. That's true. It is not as easy as higher level languages that you study. So once we are done with this, don't worry about this. I will tell you जब मैं आपको ये एक और प्रोग्राम करवाऊंगी एमुलेटर पे, जो प्रोग्राम की वीडियो अपलोड करूंगी उसमें ये सारा का सारा हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी कि हमने इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. So what I'll do, that's why I will not include this part in today's second video. What I'll do is I'll only include first two parts, like taking inputs and just displaying it, but I will include something which will that if you have to give the numbers and then you have to do the arithmetics, तो वो कैसे करेंगे वो फिर मैं अगली वीडियो में incorporate कर दूंगी ताकि आप लोग confuse ना हो. So to display the string, if you have to display a string, for example hello world, finally we are to the point where we have to display the hello world. इसमें parameter passing क्या होगी 09. You have to pass the parameter 09. Now you have to take to display the string type output, right? For example अगर आपने even number भी कोई लेना है, यूजर से आपने कोई इनपुट लेनी है which is character or string, you actually display a message before this. You say enter first number. For example हम example ले लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम की जो कि हमने किया था अरिथमेटिक्स या एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो उसमें आप कहते हैं कि एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर. तो ये भी तो मैसेज है ना, दैट इज अ स्ट्रिंग टाइप मैसेज. ठीक है, तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे यूजिंग अगेन दीज थ्री लाइन्स. What you pass as a parameter is 09 in AH, and your interrupt call of int21h will say कि अच्छा I have to call the subroutine that displays a string, right? Now again you see we are not taking DL over here because string can be a lengthier message and it is also a combination of characters. So what we will do is we will, अगर हमने मैसेज को वैसे डिस्प्ले करवाना हो या मैसेज हमने इनिशियलाइज कराना है फॉर एग्जांपल, तो वी राइट मैसेज, उसकी टाइप बाइट साइज, ठीक है, एंड देन वी राइट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, अब यहाँ पे शायद कुछ लोग कह रहे हो कि यहाँ कॉलम्स आने चाहिए थे, लेकिन अगर आप लोगों को याद है कि मिप्स आर्किटेक्चर की का सिंटैक्स इज स्लाइटली डिफरेंट देन दिस, तो यहाँ पे को सेमी कॉलम्स जो हैं वो नहीं आएंगे. जो मिप्स आर्किटेक्चर है उसमें जब आप मैसेज ऑब्वियसली डिस्प्ले करते हैं या मैसेज को इनिशियलाइज करते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ कॉलम्स लगाते हैं और यहाँ पे नहीं आएगा. वहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ASCII Z एंड देयर आर evolved डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल ओवर देयर. यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास डेटा टाइप्स ही टोटल 5 हैं. तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ये मैसेज जो है उसका एड्रेस, नॉट द मैसेज, उस मैसेज का जो एड्रेस है वो हम DX में मूव करवा देते हैं और इवेंचुअली क्या होता है
वो ये dx जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है टू द स्टार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग, टू द start of that yes string, right? So that's the fourth use of int21h. What you have to try doing is that you will write a program to display hello world simply after watching my second video in this regard, where I will use emulator inshallah. Okay, so fifth and last function of using functionality of using int21h is to terminate a program. How do you do that? ये हम लोगों ने देखा भी है पहले, हमने प्रैक्टिकली इसको किया है जब हम एमुलेटर यूज कर रहे थे, और उसमें हमें पता है हम यहाँ पे क्या मूव करवाते हैं. द पैरामीटर पासिंग इज 4c. 4c अगर हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं, दैट मीन्स दिस इंस्ट्रक्शन इज नाउ यूज्ड. अच्छा, यहाँ पे दिस इंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली एडिशनल, लाइक दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट मैंडेटरी टू यूज. बाकी सब में मैंडेटरी थी यूज करना, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन इज ऑप्शनल टू यूज. व्हाई डू वी यूज इट, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर आपने प्रोग्राम सिंपल टर्मिनेट करना है तो पैरामीटर आप यहाँ क्या पास करते हैं, 4c एंड देन यू कॉल इंटरप्ट 21h. तो वो क्या होता है, इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम एंड गोज बैक टू द डॉस. ठीक है, और इट हैंड्स ओवर द होल कंट्रोल टू द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम. मैं डॉस यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मिप्स में शायद वो आपकी विंडोज़ या हायर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे जाता है. जब हम 8086 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कोई मेच्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर नॉट रियली इवॉल्व्ड, तो यहाँ पे डॉस बेस ही एक बायोस सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता था. दैट इज़ वाई इट गोज बैक टू दैट बायोस सिस्टम और दैट डॉस बॉक्स, डॉस बेस सिस्टम. अब ये हम क्यों यूज करते हैं, दिस इज ऑप्शनल. इफ यू गिव 0 0 दैट मीन्स देर इज नो एरर इन द प्रोग्राम. इफ यू डिफाइन एनी नंबर, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे 0 0 ही दे सकते हैं कि कोई भी इसमें एरर नहीं है. आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एरर है या यहाँ पे एरर नहीं है, या हमने कोई एरर मैसेज खुद से कैसे डिस्प्ले करवाना है जब तक कि असेंबलर ने उसको असेंबल ही नहीं किया. तो भाई जो एरर्स होते हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक प्रोग्राम लिख रही थी, उसके दरमियान में मैंने इसको यूज़ किया, लाइक मैंने उसको एंड पे यूज़ करना है, लेकिन फर्स्ट में मैंने प्रोग्राम क्या लिखा कि आई आस्क यूज़र टू एंटर अ नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू f, राइट. मैंने एक कैरेक्टर इनपुट लेनी थी यूज़र से, और मैंने यूज़र को कहा कि एंटर, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर. अब उस यूजर को नहीं पता था, या द पर्सन कैन बी नाइव और एनीथिंग, और उसने क्या किया, कैरेक्टर में जाहिर है कि वो 0 से f तक ही वैल्यू उसको प्लेस करनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, m भी तो कैरेक्टर है ना, m भी तो की है उस पर, उसने m प्रेस कर दिया. नाउ यू कैन एक्चुअली डिस्प्ले अ मैसेज बाय गिविंग इट 1 0 1 और 0 2, जो भी आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे फिर आप उसको अलग से डिफाइन करेंगे कि वो किस टाइप का एरर है. तो मैं वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देती हूँ कि द कैरेक्टर यू हैव एंटर इज अ रॉन्ग वैल्यू, और या फिर इट इज़ आउट ऑफ रेंज, एंटर एन अप्रोप्रिएट कैरेक्टर. तो वो फिर हम उसे कस्टमाइज्ड मैनर में यूज कर सकते हैं इन नंबर्स को. बट बाय डिफॉल्ट इफ देर इज नो एरर फ्रॉम आवर साइड, हम क्या करेंगे, इसको 0 0 करके करवा देंगे डिस्प्ले. अगर आप सिंपल प्रोग्राम में अगर आप ये नहीं भी लिखते तो इट विल रन परफेक्टली. So till here we have discussed all the functionalities of INT21H. We have discussed how we use it to take inputs and inputs of various types, for example character and for example string. Similarly, how do you display character and how do you display string. Similarly, how do you terminate a program, and how do you pass different parameters in order to get different different functionalities out of INT21H, or you call different subroutine using the by passing the same different parameters, right? So with this, I'm going to conclude this session, and I will get back with another video which will explain that how will you use emulator to displace the programs, or how will you use INT21H
सिमिलरली इसी के साथ एक वीडियो अपलोड हो रही होगी जो कि आपको ये बता रही है कि आप इसी को प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करें या एमुलेटर पे सिमुलेट करके कैसे देख रहे हैं। तो मैं पहला वाला ही प्रोग्राम यूज़ करूँगी उसमें, जो कि है एडिशन वाला प्रोग्राम। और उसमें मैं क्या करूँगी कि मैं डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट जो अ, उसके टर्मिनल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस डिस्प्ले करवा दूँगी ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमने एक्चुअली इसको प्रोग्राम में यूज़ कैसे करना है। So you can always ask any questions if you have in the videos. If you have a recorded video, you already know that in every lecture of mine there is in Google Classroom there is a there is a query form. You can always write the queries into that form and they'll reach out to me and I'll discuss it with them with you whenever we get a chance or whenever we have the interactive session. So signing out from today's lecture. Allah Hafiz.